Hi, good morning everyone. Good morning. Good. So how are you all doing? Fine. Nice. So you all here are from the nearby schools or different schools? Different schools. Okay. Ryan. Sahil. Congratulations to Sahil because he did an excellent performance, I feel. And I am really hoping that you are going to be the district topper. And let's hope how many of you are going to be there. So today, like Raman sir introduced me, like we are three brothers and two sisters basically. So a little bit about ourselves. And we have always been brought up together in an atmosphere that we have been told each other's importance. Like ek brother kya hai, ek sister kya hai, we have learned this. And trust me, if I am here today, it's more of Raman sir's contribution. I still remember in 2013, it was my last exam of BCom final year on 27th April. And on 28th April, I got a call and Bhaiya was like, कल तो तेरी है ना क्लास है. And I was like, sorry, कि आ केड़ी क्लास हो गई? So he told me कि you're going to start up with the +1 and you're going to join from tomorrow. And for just 5 to 10 minutes, I was like, no, this cannot be possible. I just want to enjoy my holidays. But then my father was like, भैया ने कहता है ना, तू जाना है. So I was like, okay, I need to see what I have to do. So I started with one student in Angel Study Circle. The roots from where I belong is Angel Study Circle. And I started with one student from KVM. And I guess it was a journey of full ups and downs. And before that, I was having no clue कि gold medal आएगा, BCom का result क्या होगा. It was totally unexpected. When my result came, I was second in BCom. There was a difference of 2 marks. My father was like, जे first आंदी मैं गड्डी ले रहा. I was like, पहले तो ये कहा नहीं. And I was in a fix. I went to my college. I spoke to my teachers that this is the thing. I'm from Shri Aurobindo College of Commerce and Management. So one of my teachers said, Hargun, go for revaluation. I was like, are you sure, ma'am? She was like, yes, just go for it. And I guess it was only 1 or 2 days were left and I filled it. I did all the procedures. And when the final results were out, and I had 4 marks ahead of that student. So it was such a like a gift, you can say. Gaddi aayi. So the result was. We were on our way to Darjeeling at that time. Yes, in Jan. We were in the car at that moment when she called her that she is ranked First she in stood first yeah. after the evaluation. Yes. So after evaluation, the result came in August, September. And then what happened was December में like bookings were going on for the cars and पापा ना उस दिन घर नहीं आए दोपहर को lunch के लिए. And I was like, पता नहीं आज कहाँ रह गए. मैंने शाम को 7 बजे के round call की and he did not tell even at that point of time. And on 7th Jan बाहर horn हुआ. And I was like, वाह, मैं कहा ये किसकी कार है? And he was like, I promised. And you got the university position, so there is the gift. ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. Because you know he always had that thing कि नहीं कुड़ियाँ नहीं कर सकदियाँ वाली situation. And moreover, I want to discuss something about sir as well. I hope it's okay with you guys because मैं इतना कुछ prepare नहीं किया सीगा. I'm discussing my such experiences. Maybe they will leave an impression on you. Taman bhaiya and my sister, they were of the same age. And when their stream had to be chosen, my father was like, she will do medical, but without tuitions. भैया अपनी graduation days में थे, भैया took commerce. And without tuitions, मुझे नहीं पता था because हम सब, all of us have studied on the basis of self-study. So I'll be coming to the point of importance of that as well, right? तो क्या हुआ? दीदी को medical लेके दे दी, but I used to see her crying
एंटायर टाइम कि या की हो गया जिंदगी में डिप्रेशन पूरा छा गया हुआ है, लिटरल वाला। मैं बड़ा चौड़ा होके हूं दसदा आई एम द ओनली साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम माय फैमिली। यस, आई वांटेड टू कम ऑन दिस ओनली। तो मैंने ना 8, 9, 10th ये 3 साल ना मतलब देखा कि भैया वाज इनटू टेबल टेनिस, ही हैड रिप्रेजेंटेड स्कूल फॉर नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स। तो उनका तो ऐसा सिनेरियो था कि उन्होंने एंड में ही करने वाली सिचुएशन में पहुंचे हुए थे। एंड उसके बाद उनको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज, ही गॉट अ फ्रैक्चर एंड बहुत पंगा हो गया था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड दीदी वाज लाइक वो कि मेरी तो +2 होने नहीं वाली, उसकी सिचुएशन ऐसी थी। तो मैंने ना उस टाइम पे मेरे मन में एक फियर बैठ गया था, मैं नहीं साइंस कर सकती। एंड व्हेन इट केम आफ्टर माय रिजल्ट्स 10th में, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, 85%। और जब स्ट्रीम चूज करनी थी, पापा वाज लाइक तू नॉन मेडिकल करेंगी, एंड आई वाज लाइक मैं नहीं करूंगी। ही वाज लाइक हैव यू सीन भैया कि रमन सर को देखा है, उन्होंने की है ना, तो व्हाई यू विल नॉट डू इट। आई वाज लाइक आपने दीदी को मेडिकल लेके दी है, उसका तो काम खराब हो गया हुआ है, मैं नहीं करूंगी। ही वाज लाइक गर्ल्स कैन नॉट डू कॉमर्स। मैं कहा आई विल डू कॉमर्स ओनली, बिकॉज तब ग्रीनलैंड में ह्यूमैनिटीज की ऑप्शन नहीं थी। तो आई वॉज रियली शॉक्ड, मैं कहा पता नहीं है क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं नॉन मेडिकल। बट नाउ आई वॉन्ट टू टॉक हियर समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस, योर फियर। जो ऑथेंटिक नहीं था वो, दैट वॉज नथिंग ट्रू, बट मेरे मन में वो चीज़ थी कि इफ़ माई सिस्टर कुड नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, मैं तो नहीं करूँगी। तो ही वॉज लाइक ओके इफ़ यू वॉन्ट टू टेक कॉमर्स, अपनी मर्जी से ले रहे हो, अगर ना हुआ डोंट एक्सपेक्ट मी, आई विल बी स्पेंडिंग ऑन गेटिंग यू नो एडमिटेड इन अ गुड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एवरीथिंग। कर सकते हो कर लो, बट कंडीशन क्या रख दी, यू विल बी डूइंग इट विद मैथ्स। पंगा फिर वहीं पे कि अब मैथ्स करनी पड़ेगी साथ में। एंड मैथ्स स्कूल में अगर हम देखें कॉमर्स वालों के लिए जो एडिशनल होता है, इट इज़ नेवर टेकन सिंसियरली एंड वी आर नेवर फेवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो समहाउ +1 में हो गया, +2 के प्री बोर्ड्स आए, आई स्कोर्ड 11 on 80 इन मैथ्स, एंड बिकॉज ऑफ विच आई कुड सी मेरा अकाउंट्स इको बिजनेस भी सफ़र होना शुरू हो गया। सो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे अपने मैथ्स के ना क्लियर होने का दुख नहीं था, बट ये दुख था जो 2 बच्चे पास हो गए थे, ये सोच के कि वो कैसे पास हो गए, रेस्ट ऑल ऑफ अस 38 हैव नॉट क्लियर्ड एंड हाउ कुड दे क्लियर। तो मेरे मन में वो आना शुरू हो गया कि यार ये तो गलत बात होगी, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। और ऊपर से ना मेरी एक फ्रेंड ने कह दिया तेरे तो भैया पढ़ाते हैं तो फिर भी नहीं पास हुई। और ना मेरे मन में ना वो गिल्ट आ गया कि मैंने तो अपने भाई की इंपॉर्टेंस ही नहीं रियलाइज़ की 2 साल, बिकॉज आई नेवर केम टू हिम ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था मैथ्स है निकल जाएगी स्कूल पढ़ के, क्यों तब माइंडसेट क्या था, सिर्फ 4% के लिए तो चाहिए। एंड अब जब 11 नंबर थे, हिम्मत नहीं थी पापा को बताने की, वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, कुड नॉट टॉक टू भैया क्योंकि मैं पता था गालियाँ पड़ेंगी। बट देन समहाउ आई गैदर्ड माई करेज, मैंने माँ जी मतलब भैया के मम्मा से बात की, बिकॉज आई डोंट कॉल हर बड़ी माँ या ताई जी, आई कॉल हर माँ जी, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न दे ऑल टुक मी, दैट दे वर लाइक कि हमने तुझे लेके जाना है, एंड दे डेकोरेटेड ऑल दोज बलून्स एंड बेड वगैरह सजाया कि हाँ लाइक यू आर गोइंग टू बी विद अस। बट मेरे मम्मा रो पड़े एंड दे वर लाइक नहीं चलो ठीक है, मम्मा को नीचे पकड़ा दिया। तो फ्रॉम दैट वेरी डे आई नो, मेरे को मम्मा मेरे ने यही बात कही थी कि बिफोर मी शी इज़ योर मदर। तो दिस इज द वैल्यू आई हैव गॉट फ्रॉम माई फैमिली, एंड यू पीपल नीड टू नो योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आई नो कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमें लगता है कि यार बोली जाते हैं की पता सी की कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, बट द रियल स्ट्रगल इज द वन दे डिड ताकि तुम आज यहाँ आ सको। तो बस फिर उसके बाद आई केम टू भैया एंड मैं कहा भैया क्लियर नहीं हुआ करवा दो। वो होता है ना एक माइंडसेट, लास्ट में जाके पढ़ लेंगे, करवा देंगे टीचर्स। बट प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड, टीचर्स हमें घोल के नहीं पिला सकते। जब तक हमारा बेस नहीं होगा, जब तक हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, वी कैन नेवर डू इट। एंड
I feel you should, be thankful that the place where you are sitting, that teacher has given everything for his every batch. And I really want you to give a round of applause for Raman sir first, because of the finest infrastructure he is providing you guys and the most practical way of teaching. See, I am in Kichlu Nagar market. I have seen this scenario. ठीक है, एलकेमे हमारे घर के बिल्कुल बाहर है, अंकुर अकेडमी हमारे घर के बिल्कुल बाहर है, ठीक है, इनोवेशन इज जस्ट नेक्स्ट टू अस. So I have seen that thing, but the quality you are given here is not provided anywhere. तो सबसे पहले तो ये थॉट नहीं रखनी है एग्जाम से 5 दिन पहले टीचर तो करा देगा. इट्स ऑलवेज एन एफर्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस. इन शॉर्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से जो गलती मैंने की थी प्लीज आप लोग वो मत करना, ठीक है. भैया ने कहा ठीक है तू आ जी सवेरे 5:30 बजे, बिकॉज ही वॉज अ मैन. इतना एफर्ट करते थे, सुबह भी पढ़ाते थे, अपना पढ़ने के बाद फिर आके भी पढ़ाते थे. एंड व्हेन देन ही गॉट द जॉब, तो यू पीपल नो हिज रूटीन मोर देन मी, राइट. तो 2 दिन तो मैं बड़ी खुशी से उठी एंड आई वाज लाइक वाह चलो मेरे को मैथ्स का सहारा मिल गया. 5:30 बजे आई रीच्ड, ठंड में, जैन के महीने में. तो वो 2 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया मुझे मैथ्स छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज I never wanted him to sacrifice his batch just because of my mistake, because I didn't attend that. तो मैंने यही रियलाइज किया कि बाकी बच्चे ना सफर हों, भैया की पूरे साल की मेहनत खराब जाएगी अगर वो सारा टाइम अब मुझे देना शुरू करेंगे. somehow I just backed out. और मैंने यही सोचा था जितना हो सका कर लूँगी, जहाँ दिक्कत आएगी तो I'll be definitely going. सो समहाउ बस ठीक है, क्लियर हो गया था, 4% का एडवांटेज मिल गया था और बिंदो में एडमिशन होगी. गवर्नमेंट कॉलेज में भी हुई थी, बट माय फादर वाज लाइक ऑल गर्ल्स में इसलिए नहीं भेजा कि एक उठने बैठने का जो एक रहता है ना सोसाइटी, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इफ यू गो इनटू वन पर्टिकुलर सिनेरियो. एंड आई वाज रियली इन अ शॉक कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद उन्होंने मुझे और बिंदो कैसे एडमिशन ले दी. तो it was 26 May 2013. I'm really good at dates, I know that. मुझे फर्स्ट फ़ोन मिला आफ्टर +2. तो वो टच स्क्रीन फ़ोन्स तब नए नए चलने शुरू हुए थे, नोकिया का मिला था 5233. तो 1 महीना बहुत खुशी से चलाया, बहुत टाइम वेस्ट किया, अंतों का टाइम वेस्ट किया. चाहे तब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वॉज नॉट मतलब माई काइंड ऑफ थिंग. तो जब कॉलेज एडमिशन्स होगी सब कुछ हो गया. द डे आई हैड टू गो टू कॉलेज फर्स्ट डे, पापा कहते 1 मिनट फ़ोन दी, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू लॉक आवर फ़ोन. मैंने पकड़ा दिया. सुबह 8 बजे बस आनी थी और बिंदो की, तो आई गेव इट. ही वॉज लाइक, उन्होंने सिम निकाला और वो जो नोकिया के वो बैटरी वो टॉर्च वाले फ़ोन नहीं होते थे बटन वाले, ही गेव मी दैट. एंड आई वॉज लाइक ये क्या किया आपने. ही वॉज लाइक कि तुझे फ़ोन दिया कि तुझे जाना है कॉलेज. और मेरे मन में पता क्या थॉट था तब, वो स्टेटस वाला, और बिंदो भेजी और मुझे ये वाला फ़ोन देके भेजोगे. आई थ्रू इट ऑन द बेड. आई वाज लाइक मैं नहीं लेके जाऊंगी. एंड यू नो ही वाज लाइक ना लेके जा. उन्होंने मुझे बस के लिए ड्रॉप किया और मुझे पता लगा बस ऑलरेडी निकल चुकी थी मेरी नॉनसेंस हरकतों की वजह से, क्योंकि मैं घर क्रिब कर रही थी कि मुझे फ़ोन वापस करो. तो ही वेंट, मुझे अभी भी याद है, पल्सर 180cc, उस पे he went to drop me to village Jhande around approximately 16 to 17 kilometers. और मेरी पीठ तो भाई पहले दिन ही टूट गई. I was like I cannot go on a bike or two-wheeler. And वापसी बस में आई, but then I realized कि अगर फ़ोन होता पापा को फ़ोन कर देती लेने आ जाओ. पहली बार लाइफ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ऑटो में आना पड़ा. And I was like ये क्या हो गया मेरे साथ. One thing, your actual life will start after +2, when you will be out of the zone where your parents are always protecting you. अभी आप जिस एटमॉस्फेयर में हो, it is the best and the golden period of life. The real struggle starts after this, and वो भी struggle smooth तब होगी अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. Otherwise it's a race जहाँ पे nobody is going to ask the mediocre or the average one. I say the same
to my students, but yes, at times our luck is always there with us, but for that also you need to put a little bit effort, and that effort is something that comes from within. ठीक है, अपने fears से लड़ना सीखो, come out of those fears. अब कई बार होता है few of us perform very good जब हम थोड़े डरे होते हैं, but मेरे जैसा बंदा I was unable to perform with that stress thing. Why? Because ये impression मुझे अभी तक याद है. I did a course named Landmark with भैया सुखप्रीत भाभी. तो वहाँ पे ना हमें सेशंस जब मिलते थे तो एक fears वाला 8th सेशन था जहाँ पे we were asked to write down the fears, and you know the only fear I got was I cannot ride a bicycle. और मैंने ये बात तब भी की थी कि जो हमारा फियर एक ऐसा हमें ओवर पावर कर लेता है, कई बार हम उससे बाहर नहीं निकल पाते. एंड यू नो, इवन नाउ इफ माई हस्बैंड हैज टॉट मी टू ड्राइव कार एंड गेट माई सन बैक फ्रॉम स्कूल एंड ड्रॉप हिम, आई कैन नॉट राइड अ बाइसिकल. सो दिस इज समथिंग टू जस्ट टेल that you have to overcome the negativity that if ever surrounds you in your life. बहुत ज़रूरी है अपने mindset को positive रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And then when I did my masters from Khalsa College, क्योंकि औरबिंदो में थी नहीं, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली थी, it was first rank, but then my best friend did not get admission, so मैंने अपनी सीट ड्रॉप कर दी. Why? Because I was like, नहीं, friend zone, very important. ठीक है, it is important. You should be there with your friends whenever they need you. But you know, अगर इस वक्त आप अपने पे फोकस कर लोगे ना, nobody is going to say you selfish. कोई आपको selfish नहीं कहेगा, because जो आपने अपने लिए करना है, your friends cannot do that for yourself, for you. Instead, motivate them, even tell them कि हाँ पढ़ना क्यों ज़रूरत है इस वक्त पे. एंड देन उसके बाद आया यूजीसी मेरी लाइफ में. दैट्स अ नेशनल लेवल टेस्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर. दैट इज द बेस लाइन फॉर कॉलेज टीचिंग. तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो अब इसके लिए ट्राई करते हैं. बट विदाउट एनी प्रिपरेशन आई जस्ट वेंट वंस चंडीगढ़ टू सी कि हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक. तो नहीं क्लियर हुआ क्योंकि जनरल कैटेगरी हैज़ टू सफ़र अ लॉट. वहाँ पे कोटास के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस होती हैं, एंड जनरल इज यू नो रैंक द लास्ट वन. बट देन आई वाज अ पर्सन कि अगर एक बार कुछ सोच लिया है फिर उसको करके ही रहना है, जो मर्जी हो जाए. आफ्टर दैट फ्रॉम एमकॉम, आफ्टर आई फिनिश विद माई एमकॉम, फुल 1 year आई यूज टू गो एक्सटेंशन लाइब्रेरी. मॉर्निंग 10 o'clock, आई यूज टू रिटर्न एट 2 o'clock. I used to do self study, and it is like आपने जो आज तक नहीं पढ़ा होता, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे एरिथमेटिकल है, चाहे कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, you have to study everything if you have to give that national level paper. तो what happened, I used to study till 2. घर आके 3 बजे मैंने पढ़ाना होता था, 3 से 7 फिर मैंने बैचेस अपने तब तक स्टार्ट कर दिए थे 2016 तक. उसके बाद I used to take a break and I used to do walk in that break. 7 से 8 वाले में I used to refresh my mind with a physical activity of walking. उसके बाद डिनर वगैरह किया, then again I used to sit 9:30 till 2. I used to study. And this is something I've never shared with anyone. कि मैंने 1 साल इतनी पढ़ाई की है क्योंकि मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि मुझे यूजीसी क्रैक करना है. क्योंकि जिस बेस्ट फ्रेंड के पीछे मैंने एडमिशन छोड़ी थी ना, उसका पहली बार में हो गया था, मेरा हुआ नहीं था. एंड देन नेक्स्ट ईयर आई वेंट अलोन टू गिव द एग्जाम, और मुझे पता नहीं था मेरे को पेन लेके जाना है. रीजन, उससे पहले साल तक जब आई गेव द टेस्ट, पेन्स वर प्रोवाइडेड एंड आई वाज सो ऑक्यूपाइड इन स्टडिंग. आई हैड अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडिंग फॉर 16 hours पर डे on Sundays when I didn't used to teach. Because मेरा बिलीव ये था कि जो टीचर्स ने दिया है उसको तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे. ठीक है, तो मुझे वहाँ पता ही नहीं था पेन लेके जाना था, और मुझे लग रहा था आज तो भाई पूरे साल की मेहनत बर्बाद होने वाली है.
because the examiner was like you can go out if you don't have pen. But then कोई एक nice बंदी थी, एक सीट छोड़ के बैठी थी, क्योंकि मेरे साथ वाले ने तो रिप्लाई नहीं किया, because they are people from different states. पता नहीं उसको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आई, पता नहीं क्या था. He saw and he was like this. I was like बंदा हाँ नहीं कर देता है. तो एक सीट छोड़ के एक लेडी बैठी थी, she was newly married, उसके पास 4-5 पेन थे, तो she gave 2 out of them and she was like you can write with this. And trust me, मेरा पहला पेपर इतना अच्छा गया, I was like अब ब्रेक के बाद भी ना मैं यही पेन से लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता था तब तक पापा बाहर पेन का पैकेट लेके खड़े थे. And I was like कि चलो ठीक है, but then I wrote with those 2 pens only and I cleared UGC with a 64%, which is a huge score for clearing it, क्योंकि उसकी कट ऑफ थी तब 57 के 58. So your efforts are going to count a lot, and I personally believe मेरी लाइफ की सक्सेस तो मेरे घर के ब्रदर्स को और मेरे फादर को जाती है, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ उतने साल की स्ट्रगल दी है, राइट. सो ऑल दैट मैटर्स इज हाउ मच यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग इन लाइफ. योर पेरेंट्स कैन गाइड यू, योर टीचर्स कैन गाइड यू, दे कैन टीच यू, बट अल्टीमेटली पेपर किसने लिखना है? आपने. नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. And after my marriage, I was like, I just said once to my husband that I want to continue with my profession. And you know, I'm so glad he never said a no. He was like, whatever you want to do, I am going to, you know, just be with you. तो मेरे लिए बहुत difficult था एक नया setup फिर से लगाना, फिर से 2 बच्चों से start किया, एक drop आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे then I was blessed with a son, तो मेरे लिए बहुत difficult हो गया था फिर से manage करना. One thing I want to add, she overcome her fear of science by marrying an engineer, and above that he is a singer too. Indian Idol मेरे ख्याल से मुंबई तक का ही इन्होंने सफर, सारेगामापा, इंडियन आइडल, तो he has been there. साइंस का fear तो इसने overtake कर दिया, इंजीनियर को अपने अंदर overtake. No, like last night I was asking him one thing I wanted to share. I said I'm going to address the non-medical kind thing for the first time, because अभी तक मैंने इतने साल सिर्फ कॉमर्स वालों को ही हमेशा एड्रेस किया. मैं कहा तो आप मुझे बताओ कि क्या थोड़ा सा माइंडसेट होता है. तो you know he shared one thing which I was also unaware. कहते मैं अपनी ट्यूशन्स के बाद 6 से 2 रात को पढ़ता था, कि जहाँ भी he used to go, मॉडल टाउन में थे आपके, सक्सेस, ओके. तो मतलब wherever he was, तो आके 6 to 2 he used to give the sitting, और बीच में आधे पौने घंटे की food break. But then he told that he was the school topper, 96% in PCM, and when he went to Guru Nanak Engineering College, he got the phone and that was the same story, that his percentage dropped. And then he was like, कल पहली बार I saw, he was like कि काश मैंने भी तब कुछ effort किया होता कॉलेज लाइफ में, तो शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अच्छे नंबर आए होते हैं. सो आई फील नॉन मेडिकल वाले तो वैसे भी क्रिएटर्स होते हैं, दे आर द इनोवेटर्स फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल थिंग्स वी आर यूजिंग टुडे. तो आपके पास तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए पूरी दुनिया यू नो वेट करती है. तो इट्स यू नो इट्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू हिट दैट बुल्स आई नाउ. जितने डार्ट्स थे सारे यूज हो चुके हैं. दिस इज द वन लास्ट फाइनल चांस, और ये जो अपॉर्चुनिटी है बेटा लाइफ में कभी नहीं आएगी. योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी हियर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर फोन, सब कुछ वहीं रहना है. बट दिस पीरियड ऑफ 20 to 25 days is never going to come back. So this is your wise decision. Like उस दिन भैया ने उधर जब आके एड्रेस किया था, I want to first of all thank you. It was a great experience for us, and students were really now you know charged up. Yes, we have to do something. So he told there one thing, that you have to be rational in your decision making. तो इनके जाने के बाद मुझे 2 बच्चों ने पूछा, दीदी पहला दसा है दसो रैशनल का मतलब की होंगे. एक दिन के बाद, मतलब उनके माइंड पे वो इम्प्रेशन था, तभी उन्होंने वो पूछा. तो रैशनल डिसीजन फॉर यू एट दिस पॉइंट इज दिस ओनली, लीव एवरीथिंग एंड जस्ट गिव योर 100%.
लाइक दिस इज नाउ और नेवर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. इसके बाद लाइफ एक्चुअल में, मैंने क्या कहा था, स्ट्रगल स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रगल कम नहीं होएगी. इट विल बी अ लिटिल ईजियर टू गो ऑन विद दिस जर्नी if you realize the importance of this time. प्रेजेंट में जियो. जो अगर पीछे नई परफॉर्मेंस ठीक आई है, प्लीज उसका इम्पैक्ट अपने आने वाले सिनेरियो पे मत आने दो. एंड इफ यू पीपल आर लाइक लास्ट मोमेंट प्रिपरेटर्स ऑल्सो, प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप अ डे बिफोर एग्जाम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Minimum 7 to 8 hours sleep is going to help you in actually writing a good paper. He is saying before exam. हाँ, a night before. Not now. A night before I'm saying. Exactly. And please ये एक महीना junk, oily, ये सारी चीजें avoid करना, because we cannot be at the risk of eating something जिससे हमारी थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस डाउन आ जाए. मैंने एक बार जिद कर ली थी, मुझे पेपर में वो मैगी वाला पास्ता आता था ना जो नया, मैंने वही खाना है. एंड माई फादर थ्रू इट इन द डस्टबिन. मैं कहा ये क्या किया आपने? कहते अगर खा के बीमार होगी, हु इज गोइंग टू राइट द एग्जाम. और मुझे तब बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं. बट नाउ आई रियलाइज एज अ मदर, एज अ टीचर फॉर माई स्टूडेंट्स, that why it is so important to maintain a healthy lifestyle, जो मेरा अब खुद का नहीं है, but I always say to my students कि होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. और almonds तो ज़रूर खाओ. that should be your snacking जब भी आपको बीच में भूख लगे. I used to eat that and it actually helps you to increase your retention power. walnuts and almonds dip करके खाओ और तुम्हें एक्चुअल में उसका डिफरेंस पता लगेगा. नॉट जस्ट द फिजिकल ब्यूटी थिंग, बट द ब्रेन इज गोइंग टू बूस्ट अप दोज केमिकल्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई पैनिक में आके अपना लास्ट मोमेंट ख़राब करे. अपनी स्टेशनरी, अपनी सारी प्रिपरेशन प्लीज़ प्रायर करके रखना, ताकि एंड में कुछ भी हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि जहाँ जहाँ आपका सेंटर बन रहा है यू विल बी गिवन एनी फेवर और यू विल बी गिवन एनी गुड ट्रीटमेंट. अपना माइंडसेट बना के चलो एक न्यूट्रल, दैट इफ नोबडी नोज यू, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग. ये चीज़ का ध्यान रखना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार ऐसे होता है, ले वो स्कूल है कोई बात नहीं, वहाँ का तो ये हिसाब है ये हिसाब है. कई बार हमने जो सुना होता है that is not true when it comes to board exams, because every school wants their result to be ahead of others. ठीक है, तो प्लीज किसी चीज पे रिलाई मत करना, आसपास पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना है. फोकस ऑन योर पेपर. दैट इज व्हाट इज नीडेड. दैट इज व्हाट विल गेट यू योर goal achievement. I feel that's all I would like to say. But yes, one thing, your teacher is going to be always here. It's you who is going to get successful and go ahead in life. So please उस चीज़ का ध्यान रखना. Get up to his expectations and your life is going to be a really life-changing experience if you are going to live your dreams, which is going to be on this board exams, because आपने 10th board नहीं दिया. COVID batches have not given the boards before, so जो testing भैया कहते हैं जब देनी है पेपर वाली, प्लीज़ दो. उससे आपका फियर भी निकलेगा, उसकी आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने बैठोगे you will feel यार ये तो मैंने को भैया ने पहले ही कराया हुआ, that sir has already covered this for me. So that is something which is going to actually help. तो testing इसलिए बहुत important. डरो मत, ये मत सोचो your teacher never judges you. As a student we judge our teachers, our parents, but teacher is never a judge in this case. कि वो आपकी ख़राब परफॉर्मेंस के बेस पे ये सोच लेगा कि नहीं जी इसको तो कुछ नहीं आता. वो खड़े ही यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आपके लिए वो कुछ कर सके, राइट?
So anything you people want to ask? चलो ये स्माइल के साथ ही पेपर में जाना है, खुश होके जाना, बिकॉज जैसी वाइब हम देते हैं, ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा था, ही वॉज फ्रॉम येस प्लस, येस कोर्स, वो आर्ट ऑफ लिविंग, सॉरी, कि जो वाइब आप यूनिवर्स में डालते हो वही वाइब वापस आती है. और पहले मैं ये नहीं बिलीव करती थी, बट नाउ आई हैव ऑल्सो यू नो स्टार्टेड बिलीविंग दिस थिंग, कि जो हम थॉट के साथ काम स्टार्ट करते हैं, इट एक्चुअली कम्स बैक विद दैट थिंग. तो तुम्हारा एक पॉजिटिव रहना एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश इज योर फर्स्ट एग्जाम, राइट? बाई चांस अगर थोड़ा बहुत अटपटा हो भी जाता है बिकॉज इट्स फर्स्ट, वैसे तो ना हो, बट प्लीज उसके कारण अपने आने वाले एग्जाम्स का परसेंट मत नीचे लेके आना. ये चीज का ध्यान रखना हमने. यू कैन नॉट यू नो पुट ऑल योर एग्जाम्स एट स्टेक बिकॉज ऑफ जस्ट 1 or 2 mistakes, right? So that's it from my side. I had a really good time addressing you guys, and hope you will also, you know, keep small little things in mind before going to exam. Thank you. Thank you. And please, one round of applause for Raman sir, because he has been our true motivator. अच्छा, एक चीज यहाँ पे ना क्लियर करता हूँ तुम सभी के लिए. देखिए, एक सेल्फ मोटिवेटर होता है. ही इज द सेल्फ मोटिवेटर. ठीक है, आप देखो उसका पैटर्न, देखो पढ़ने का कैसा रहा. ठीक है, आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि उसका ये पैटर्न रहा. मुझे नहीं मालूम था ऐसे उसने किया है. एंड जिस फ्रेंड के बारे में ये बात कर रही थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. वैसे कि वो जर्नी है. सरगुन मेहता पता, एक्ट्रेस है, उसकी भाभी है. अच्छा, अब मैं वो तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ. ये मेरे पास आई